Good morning, everyone. So we will start with the next session and probably the concluding session for accounting equation, in which we are going to solve some very peculiar transactions and the way it is required to be treated in accounting equation. Okay, so let's start with it. So the first, you can see that first of all, while starting the question, I have written here the accounting equation, that is assets is equals to liability plus capital. Now let's go ahead and let's solve some transactions, right? The question that I'm solving right now is, I'll tell you the question number. Okay, so this is question number 7 in the exercise. If in case you have the book, so you can refer to the exercise. It is question number 7. If you don't have the book, that's perfectly fine. You already have the solution. In that solution, I have already written the transactions for you, so you can very well connect that what was the question, and based on that, how it has been solved. Okay, so let's start with the transaction. So the first transaction written here is started business with cash. So we can see that the proprietor is bringing in the cash 1,20,000 and he is contributing that cash in form of capital. So जब cash आता है तो business में cash आ रहा है, इसीलिए cash हमारा asset है और वो add हो जाता है. और किस form में cash आ रहा है? It is coming in form of capital. इसीलिए cash में plus कर दीजिए 1,20,000 and capital में भी 1,20,000 plus हो जाएगा. Okay, I hope there are no doubts in this transaction. Total कर दीजिए. So 1,20,000 is equals to 1,20,000. That is debit side is equals to credit side. Both are equal. Let's move on to the next transaction. Next transaction is saying purchase goods for cash. We are already knowing this very well, right? This is not a new transaction for us. So purchase goods for cash. So whatever goods that we are purchasing, we call it stock, right? In accounting equation, we are going to call it stock. So I've written here stock. You can also write goods or stock, no problem, right? तो आपने स्टॉक खरीदा है, कितने का खरीदा है? 10,000 रुपए का खरीदा है, right? So okay, ओके अदिति बच्चे, आप कह रहे हैं कि आपके बुक में वो 1,75,000 दिया हुआ है कैपिटल. प्रोबेबली दे हैव रिवाइज्ड इट. अगर आपकी नई बुक है तो वो रिवीजन हो चुका होगा उस अमाउंट में, उसके हिसाब से उसको लिया गया है. डू नॉट वरी. जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं, क्वेश्चन में 1,75,000 हो या 1,20,000 हो, अगर मैं 1,20,000 लेकर सॉल्व कर रही हूँ तो उसका आंसर अकॉर्डिंगली आएगा. अगर आपकी बुक में 1,75,000 है और आप वैसे सॉल्व करेंगे तो आंसर अकॉर्डिंगली आ जाएगा. So there is no issues with that. So you can focus on the question that we are doing right now. The treatment will not change. The treatment will remain the same. The amount may change. In my book, it was reflecting as 1,20,000, so I have solved it like that. Okay. So let's go ahead and let's do it further. Okay. So purchased goods for cash. We are purchasing the goods and it is written that it has been purchased goods for cash. So cash के against लिखा हुआ है, इसलिए जब आप स्टॉक खरीद कर लाएंगे तो एक असेट आपका बढ़ जाएगा, which is stock. तो अब स्टॉक बढ़ गया 10,000 रुपए से, सो ऐड कीजिए 10,000 रुपीज. और आपने कैश में परचेज किया है तो कैश जो कि हमारा एक दूसरा एसेट है वो माइनस हो जाएगा 10,000 से. तो आपने यहाँ पे 10,000 माइनस कर दिया. सो द न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन, लाइबिलिटी साइड और कैपिटल साइड में देयर विल बी नो चेंज, बिकॉज उनका कोई यहाँ पे इंक्लूजन नहीं है इस ट्रांजैक्शन में, राइट? अब यहाँ पे आपका न्यू इक्वेशन क्या बना? न्यू इक्वेशन बनी आपका कैश हुआ 1,10,000 और आपके पास स्टॉक हुआ 10,000. So the total is again 1,20,000 and 1,20,000 on the credit side. Okay. अगर अब हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा था परचेज गुड्स फॉर कैश. ध्यान से सुनिए, अभी भी मैंने कल भी ये बात बताई थी, आज फिर से बता रही हूँ. परचेज गुड्स फॉर कैश लिखा है तो ये कैश ट्रांजैक्शन है. अगर यहाँ पे कैश वर्ड नहीं होता यूज और सिर्फ लिखा होता परचेज गुड्स, तो भी हम इसे कैश में ही ट्रीट करते, राइट? मैंने आपको कल भी बताया था, जहां पार्टी का नाम लिखा होता है और वर्ड कैश नहीं यूज होता, राइट? या फिर पर्पसफुली वर्ड क्रेडिट लिखा होगा, सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस आपकी क्रेडिट ट्रांजैक्शंस होती है. रिमेनिंग ऑल द अदर ट्रांजैक्शंस आर योर कैश ट्रांजैक्शन. आई होप यू आर एबल टू रिकॉल दैट. ओके, आगे चलते हैं. थर्ड ट्रांजैक्शन इज रेंट रिसीव्ड. कितना रेंट रिसीव किया है? 5,000. नाउ रेंट व्हेन वी आर रिसीविंग, इट इज एन इनकम. एंड इन व्हाट मैनर आर वी गोइंग टू रिसीव इट? वी आर गोइंग टू रिसीव इट इन कैश. तो जब आप रेंट रिसीव करते हैं 5,000 रुपीज, तो कैश का बैलेंस 5,000 रुपीज से इंक्रीज हो जाता है, राइट? सो द न्यू बैलेंस फॉर कैश विच वी आर एबल टू सी इन आवर पिक्चर इज 1,15,000. और क्योंकि ये इनकम है, इसी वजह से आप देखेंगे कि आपके कैपिटल में भी एडिशन होगा, बिकॉज इनकम इज गोइंग टू इंक्रीज द प्रॉफिट लेवल, राइट? तो इसीलिए आपके कैपिटल में भी एडिशन हुआ और 5,000 रुपए वहां भी ऐड हो गए, राइट? So the new balance of cash is 1,15,000 plus stock 10,000 and the capital balance is 1,25,000. So the debit and credit side both are equal and opposite again.
ओके, नेक्स्ट इज सैलरी आउटस्टैंडिंग। अब ये एक नया ट्रांजैक्शन है, ध्यान से देखेंगे। सैलरी आउटस्टैंडिंग, आप सबको याद है सैलरी आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है? सैलरी एक एक्सपेंस होता है, अनलेस एंड अनटिल सैलरी रिसीव्ड ना लिखा हो, तो सैलरी हमें एक्सपेंस की तरह ही लिखना होता है। अब अगर ये एक्सपेंस होता तो हम क्या करते? सिंपल, हम कैश में से माइनस करते और हम कैपिटल में से माइनस करते। ओके, दिस इज व्हाट वी वुड हैव डन। अगर अगर ये सैलरी सिर्फ एक्सपेंस की तरह होता, दैट इज सैलरी पेड होता अगर, मगर यहाँ पे क्या लिखा है? सैलरी आउटस्टैंडिंग, दैट मीन्स सैलरी वॉज ड्यू टू बी पेड but we did not pay it. That means it is a liability for us now, right? So it's a current liability that has to be paid, which we are supposed to pay during a period of 1 year only, right? तो हमको ये तो पता है कि ये एक्सपेंस इनकर हो चुका है। मैंने अक्रूवल बेसिस में क्या बताया था आपको? कोई भी एक्सपेंस जो आप अक्रू कर चुके हैं, यानी कि जो आप इनकर कर चुके हैं, उसको आपको पे करना है, राइट? तो अगर आप पे करेंगे, आज नहीं पे करेंगे, कल पे करेंगे, मगर पे तो आप करेंगे। तो क्योंकि आप पे करते हैं तो वो कैपिटल के लिए क्या हो जाता है? उसका बैलेंस रिड्यूस कर जाता है, क्योंकि वो एक्सपेंस आप ऑलरेडी इनकर कर चुके हैं एंड यू आर सपोज टू पे इट। सो the profit levels of the organization for that particular year will be reduced by that outstanding amount, right? So outstanding का मतलब है something which has already been incurred, the expense that we have already incurred but we have just not paid it. इसीलिए इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो कैश से नहीं होता, ये हमारे लिए एक लाइबिलिटी है। इट मींस वी आर सपोज टू पे इट एंड वी हैव नॉट पेड इट एज ऑफ नाउ, राइट? तो ये लाइबिलिटी है, तो ये लाइबिलिटी में सैलरी आउटस्टैंडिंग के फॉर्म में ऐड हो जाएगी, because we are now having this obligation to pay that salary which is outstanding on our account, right? और क्योंकि ये एक्सपेंस ऑलरेडी इनकर किया जा चुका है, इसका मतलब है ये प्रॉफिट का लेवल रिड्यूस करना चाहिए। तो प्रॉफिट का लेवल जब रिड्यूस होगा तो उसका इफेक्ट कहाँ आएगा? उसका इफेक्ट आएगा कैपिटल पे। तो कैपिटल से भी माइनस कर दीजिए 2000 रुपीज। ओके, सो सैलरी आउटस्टैंडिंग का जो ट्रीटमेंट हुआ वो क्या हुआ? एक तो ये लाइबिलिटी हुई, तो लाइबिलिटी साइड में आपने ऐड किया सैलरी आउटस्टैंडिंग को, और क्योंकि ये एक्सपेंस है इसीलिए आपने इसे कैपिटल में से माइनस किया, बिकॉज एक्सपेंस इज गोइंग टू रिड्यूस द लेवल ऑफ प्रॉफिट दैट वी आर गोइंग टू generate. Okay, I hope this is clear to everyone and you are all following me. Looking at the picture, please check. I hope everybody is in the same page and is following completely. Okay, आगे चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। यहाँ पे न्यू इक्वेशन क्या हो गई हमारी? Cash remains untouched, so it is 1,15,000 cash. Then 10,000 rupees stock जो हमारा as it is है, salary outstanding है हमारे पास 2,000 rupees की, और जो capital का नया balance आया वो आया 1,23,000 rupees. Okay, so the total is 1,25,000 on the debit side and 125 on the credit side. Okay, आगे चलते हैं। Next है prepaid insurance. Okay, again insurance is an expense which we are supposed to pay. Had it been only an expense तो हम उसे पे करते कैश में से माइनस होता, कैपिटल में से माइनस होता। मगर ये जो इंश्योरेंस है ये प्रीपेड इंश्योरेंस है। प्रीपेड इंश्योरेंस का मतलब है समथिंग विच वी हैव नॉट इनकर्ड एज ऑफ नाउ, मतलब जिसकी ड्यू डेट अभी तक आई ही नहीं है। तो जब तक मैंने उसको इनकर नहीं किया और मैंने इनकर करने से पहले ही पे कर दिया, लेट मी टेक अनदर एग्जांपल फॉर यू जिससे आपको ज्यादा क्लैरिटी हो। जैसे आप प्रीपेड मोबाइल फोन में जब अपना कनेक्शन लेते हैं, मतलब आप प्रीपेड सिम लेते हैं और पैसे डलवाते हैं, तो आपने यूज तो नहीं किया है उसको, मगर आपने उसका पेमेंट पहले ही कर दिया, मतलब समथिंग विच इज नॉट बीन इनकर्ड बट यू आर पेइंग इट। तो पेमेंट करते हैं तो क्या जाएगा आपके पास से? आपके पास से जाएगा कैश। इसीलिए आप देखिए कि प्रीपेड इंश्योरेंस को मैंने 1000 माइनस किया है कैश में से, बिकॉज वी आर पेइंग बिफोर वी हैव इनकर्ड इट। तो 1000 माइनस कीजिए आप कैश में से। और दूसरा, क्योंकि ये प्रीपेड है तो जितने टाइम तक के लिए वो चलेगा, जितना टाइम उसका ड्यू डेट उसको इनकर करने में लगेगा, उसका ड्यू डेट आने में लगेगा, उतने टाइम के लिए विच इज ऑलवेज गोइंग टू बी लेस देन एन ईयर, वो हमारा रहेगा करंट एसेट। तो करंट एसेट की कैटेगरी क्या होती है? इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ असेट। तो आप यहाँ पे लिखिए प्रीपेड इंश्योरेंस और उसके नीचे फॉलो कीजिए 1000 रुपीज। दैट मीन्स प्रीपेड इंश्योरेंस में आप कैश में पेमेंट कर रहे हैं एंड दैट इज वाई द कैश बैलेंस इज गेटिंग रिड्यूस्ड। और क्योंकि ये आपका असेट है इसीलिए ये आपके एसेट कॉलम में यानी कि एसेट साइड पे ही ऐड हो जाता है एज प्रीपेड इंश्योरेंस। कैपिटल में इसका कोई भी ट्रीटमेंट क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक्सपेंस अभी तक हमने इनकर नहीं किया है। जब ये एक्सपेंस इनकर हो जाता तब इसे कैपिटल में से माइनस किया जाता, चाहे फिर हमने पे किया हो या नहीं किया हो। सो एज ऑफ नाउ दिस इज ओनली गोइंग टू बी ट्रीटेड एज करंट एसेट, so it will be shown under the head asset
एज प्रीपेड इंश्योरेंस और कैश में से हम इसे 1000 माइनस कर देंगे. So the new balance for cash is 1,14,000. Then 10,000 stock remains untouched. Then prepaid insurance add हो गया 1,000 rupees, right? और credit side पे देखिए, so we have got outstanding salary 2,000 and capital remains as it is 1,23,000, right? I hope everybody is following it. Next is received interest. ये तो हमारे लिए किया हुआ transaction है. Received interest, so it is an income which we are receiving. Every income that we receive is received in cash, or every expense that we pay is paid in cash. So income receive किया, cash में add करो, capital में add करो, right? So how much is the interest that we have received? We have received 700 as interest. So add 700 in cash. So the new balance of cash account is 1,14,700. Then stock is 10,000. Prepaid insurance is 1,000. Salary outstanding is 2,000 and 700 when we are adding it in capital. So the balance for capital is 1,23,700. Okay. So this is the balance for capital that has to be shown. And now the total of debit side is 1,25,700, and so that is the total of credit side. Okay. Next transaction is sold goods for cash, costing for cash rupees 7,000, costing rupees 5,000. So आपने गुड्स जो बेचे हैं वो 7,000 में बेचे हैं और कॉस्ट थी उस गुड्स की 5,000 रुपए. तो जब 5,000 की चीज को 7,000 में बेचेंगे तो गुड्स कितने गए आपके पास, स्टॉक कितना गया है 5,000, राइट? तो स्टॉक में से माइनस कीजिए 5,000, क्योंकि 5,000 वैल्यू के गुड्स आपके जा रहे हैं. कितने में बेचे आपने, 7,000 में, यानी कि इंक्लूजन कितना हुआ कैश में, 7,000 का. अब 7,000 कैश आया तो कैश में ऐड किया. अगर 7,000 कैश नहीं होता, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता, तो आप 7,000 ऐड कर देते डेटर में, which would have been the next asset. Okay? और क्योंकि 5,000 की चीज को आपने 7,000 में बेचा है तो वो 2,000 आपका हुआ प्रॉफिट, ऐड कर दीजिए उसे कैपिटल के अंदर. Okay? So let's see the new equation that is formed after this transaction, and that is 1,21,700 for cash, 5,000 rupees for stock because 5,000 minus हो गए उसमें से, 1,000 is for prepaid insurance, salary outstanding is 2,000, and capital is 1,25,700 after adding 2,000 as amount of profit. Okay. Last transaction that we have here again is a new transaction here, which is goods destroyed by fire, rupees 5,000. अब goods destroyed by fire है आपका, इसका मतलब है कि आपको लॉस हुआ है, राइट? अब ये लॉस हुआ है तो किसकी वजह से लॉस हुआ है, फायर की वजह से. गुड्स चले गए और उसके अगेंस्ट कोई बेनिफिट नहीं मिला. लॉस क्या होता है, कोई ऐसी ट्रांजैक्शन जिसके अगेंस्ट में कोई बेनिफिट रिसीव नहीं होता, राइट? तो अब गुड्स आपके जल गए हैं तो स्टॉक में से माइनस कीजिए कितने, 500 रुपीज से गुड्स जल गए तो 500 माइनस कीजिए स्टॉक में से, तो द न्यू बैलेंस फॉर स्टॉक इज 4,500 और इसके अगेंस्ट आपको कुछ भी रिसीव नहीं हुआ, इसीलिए कैपिटल में से भी दिस इज अ लॉस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, तो कैपिटल में से भी माइनस कीजिए 500 रुपीज. The new balance of capital is 1,25,200. For outstanding salary is 2,000. For debit side, prepaid insurance is 1,000. Stock is 4,500 now, and the cash balance is 1,21,700. So this is the final equation that we have. Anybody having any doubt in this? Final equation में किसी को कोई भी doubt नहीं समझ में आया हो, क्या हुआ, कैसे ट्रांजैक्शन हुई? इसमें आप देखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड इंश्योरेंस, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ये सब न्यू ट्रांजैक्शंस थे आपके लिए, इसीलिए मैंने पर्पसफुली आपको पहले ही पिक्चर क्लिक करके भेजी जिससे आप इसे देखकर समझ सके, राइट? एनीवन हैविंग एनी डाउट इन दिस? एनीबॉडी? आर वी ऑल क्लियर विद दिस क्वेश्चन? ओके. सौरभ पूछ रहे हैं फिफ्थ ट्रांजैक्शन. ओके, सो फिफ्थ ट्रांजैक्शन इज प्रीपेड इंश्योरेंस. और प्रीपेड इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है, एक एक्सपेंस है इंश्योरेंस. अब वो एक्सपेंस जो आपने इनकर ही नहीं की है मगर इनकर करने से पहले ही आपने उसकी पेमेंट कर दी, राइट? तो जब आप उसे पेमेंट करते हैं तो वो आपका क्या जा रहा है वहां से, बिजनेस से जा रहा है कैश, राइट? प्लस आपने एक ऐसा एक्सपेंस पे किया है जो अभी तक इनकर ही नहीं हुआ, तो जो एक्सपेंस अभी तक इनकर नहीं हुआ है उसका इम्पैक्ट कैपिटल पे नहीं पड़ता, राइट? तो आपने इंश्योरेंस पे किया और पहले पे किया उसको इनकर करने से पहले, इसीलिए मीनवाइल योर प्रीपेड इंश्योरेंस इज गोइंग टू बी शोन एज अ करंट एसेट. इसीलिए मैंने प्रीपेड इंश्योरेंस का अलग से हेड बनाया और उसे शो किया अंडर द हेड एसेट. और
क्योंकि प्रीपेड इंश्योरेंस मैंने पे किया है, तो उसकी वजह से, पे करने की वजह से जो मेरा कैश चला गया, तो मैंने उतना ही अमाउंट कैश में से माइनस कर दिया, विच इज 1000 रुपीज कैश. ओके, तो माइनस किया 1000 रुपीज कैश में से, और प्रीपेड इंश्योरेंस में 1000 रुपीज ऐड कर दिया. Okay, so this is the treatment which we have given for the prepaid insurance. I hope this is clear now. Okay, प्रांशी बच्चे आप पूछ रहे हैं what would be the journal entry for outstanding salary. Okay, वैसे तो ये भाई हमारा कॉन्टेक्स्ट में नहीं है जर्नल एंट्री, मगर फिर भी मैं आपको बता देती हूँ आपकी जानकारी के लिए. ओके, आई एम राइटिंग इट हियर, प्लीज फॉलो एवरीबॉडी. सो सैलरी इज एन एक्सपेंस, right? What do we do with expense? What is the nature of expense? Expense comes under nominal account, and so it is supposed to be debited, right? Outstanding salary. अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या होती है? हमारी लाइबिलिटी, बिकॉज एक ऐसा एक्सपेंस जो पे नहीं किया गया है उसको हम कहते हैं लाइबिलिटी, राइट? और लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट, राइट? तो एक सैलरी आउटस्टैंडिंग की जब मैं जर्नल एंट्री बनाऊंगी, व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री फॉर दैट? जर्नल एंट्री विल बी salary account debited to salary outstanding account. Amount would follow, right? So journal entry में होगा तो हम ऐसे शो करेंगे salary account debited to salary outstanding account, because salary we have already incurred it, so it is supposed to be paid. तो ये expense है इसलिए डेबिट किया, और salary outstanding जो हमने पे नहीं की है तो उसकी वजह से हमारी liability बन गई, इसीलिए सैलरी आउटस्टैंडिंग को क्रेडिट किया गया. अगर ये कैश होता तो हमारी ट्रांजैक्शन होती सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश, राइट? मगर अभी क्योंकि आउटस्टैंडिंग है इसलिए एंट्री बनेगी सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट. आई होप रांशी बच्चे दिस इज आंसरिंग योर डाउट आल्सो, राइट? एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? एनीबॉडी? प्लीज आस्क. अकाउंटिंग इक्वेशन में जिस तरह से हम चीजों को ट्रीट करते हैं, जर्नल एंट्री में जब हम ट्रीट करेंगे तो थोड़ा सा फर्क आएगा. जैसे मैंने बताया कि यहाँ हम परचेज करते हैं या सेल करते हैं तो हम स्टॉक में से प्लस माइनस कर रहे हैं, स्टॉक इज शोन अंडर द हेड एसेट, राइट? जबकि जब हम जर्नल एंट्री करेंगे तो हम परचेज करेंगे तो इट विल बी शोन एज परचेजेस व्हिच इज एन एक्सपेंस. सिमिलरली जब हम सेल करेंगे तो इट विल बी ट्रीटेड एज सेल्स व्हिच इज एन इनकम, राइट? तो वो जो हमारी ट्रीटमेंट होगी वो नॉमिनल अकाउंट के अंदर चली जाती है. तो आप इस वक्त अकाउंटिंग इक्वेशन को जर्नल एंट्री से कंफ्यूज नहीं करेंगे, राइट? तो मैं आपको जर्नल एंट्री के अगेंस्ट, सॉरी, इनसाइड ट्रांजैक्शंस के अगेंस्ट जर्नल एंट्री बता सकती हूँ इस वक्त, मगर अभी हमको कोशिश करनी है हमारा इस जर्नल एंट्री को समझने की नहीं, बल्कि हमारे इस ट्रांजैक्शन के बेस पे अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या ट्रीटमेंट हो रही है उसको समझने की, राइट? एंड आई होप एवरीबडी इज क्लियर विद दैट. एनीबडी एल्स हैविंग एनी द डाउट? If there is no doubt, I'm rubbing this off. अब इसके बाद जो मैं करवाने वाली हूँ, everybody please write it down in your notebook, because अब मैं आपको ट्रीटमेंट बताऊंगी कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस का जो आपकी बुक में इन पर्टिकुलर कवर नहीं किया गया है, मगर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वो. सो लेट्स डू द ट्रांजैक्शनल इफेक्ट ऑफ दोस ट्रांजैक्शंस. मतलब उस सारे ट्रांजैक्शंस का, जैसे मैंने कहा कि लॉस का क्या इफेक्ट था कि स्टॉक में से माइनस किया, कैपिटल में से माइनस किया, उसी तरीके से कुछ और ट्रांजैक्शंस भी हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, तो हम उसका भी इफेक्ट देखेंगे, राइट? सो लेट्स डू दोस ट्रांजैक्शंस इफेक्ट. चलिए शुरू करते हैं. आई एम रबिंग दिस ऑफ. ओके, assets is equals to liability plus capital. ये सबको दिख रहा है साफ साफ, किसी को कोई डाउट नहीं है यहाँ तक? ओके, अब जो मैं ट्रांजैक्शंस दिखाऊंगी उसमें हम कैसे ट्रीट करते हैं उन ट्रांजैक्शंस को, उसका इफेक्ट शो करूंगी. तो सब लोग बहुत ध्यान से देखेंगे और फॉलो करेंगे. ओके, so the first transaction that we are going to discuss here is depreciation. Now I can write a little bigger so that आपको समझ में आए और दिखाई भी दे साफ साफ. Okay, so I'm treating depreciation here
ओके, तो डेप्रिसिएशन हमको कॉन्सेप्ट पता है क्या होता है. डेप्रिसिएशन का मतलब होता है any amount that is getting reduced from our fixed tangible asset because of the usage, because of the passage of time, because of of getting obsolete or out of fashion, or change in the fashion and trend of the people. So any due to any reason, or due to just a normal wear and tear. So due to any reason, if the asset is getting reduced, and this is the gradual reduction in the value of the fixed asset, that is called depreciation, right? ये मैं आपको already concept समझा चुकी हूँ. Depreciation मैं आपको अभी बहुत ध्यान से एक चीज समझा रही हूँ, बहुत अच्छे से समझिएगा. It's a non-cash transaction. नॉन कैश ट्रांजैक्शन क्यों कहा जाता है, और नॉन कैश ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? नॉन कैश ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन जिसके अंदर हम किसी को पेमेंट नहीं करते, मतलब देयर इज नो फिजिकल मूवमेंट ऑफ कैश व्हिच इज इन्वॉल्व्ड. ओके, लेट मी गिव दिस एंड गिव सब्सटेंशिएट दिस विद एन एग्जांपल. अगर मैं आपको कहूं कि आई एम पेइंग रेंट, रेंट किसको पे करेंगे आप? किसी बाहर वाले को. यू आर पेइंग इट टू द आउटसाइडर, टू द थर्ड पार्टी, राइट? इसीलिए जब हम रेंट पे करते हैं तो जर्नल एंट्री जो बनती है वो बनती है हमारी रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, राइट? तो यानी कि इस जर्नल एंट्री के अंदर भी कैश इन्वॉल्व है कि हम कैश पे कर रहे हैं. सिमिलरली वी पे एनी अदर एक्सपेंस लाइक सैलरी, रेंट, देन योर इंश्योरेंस, स्टेशनरी, एनीथिंग दैट वी आर परचेजिंग और वी आर इनकरिंग एज एन एक्सपेंस, वी आर मेकिंग अ पेमेंट टू द आउटसाइडर. मगर कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर हम किसी बाहर वाले को पेमेंट नहीं करते, मगर वो एक बुक एंट्री की तरह पास किया जाता है उसे, राइट? तो वो जो ट्रांजैक्शंस होते हैं जिसमें सिर्फ बुक एंट्री की तरह पास किया जाता है जिनको, उसके अंदर हम किसी को पेमेंट नहीं करते, मतलब हम जब उसकी जर्नल एंट्री भी करेंगे तब उसमें कैश इन्वॉल्व नहीं होता. इसीलिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा और क्लैरिफाई करने के लिए बताना चाहूंगी कि डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज किया जाता है. डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन द फिक्स्ड एसेट. तो द जर्नल एंट्री व्हिच वी पास इज असेट अकाउंट, सॉरी, डेप्रिसिएशन अकाउंट, क्योंकि डेप्रिसिएशन आपके एसेट के वैल्यू को रिड्यूस करता है, एंड डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस, सो द whatever is an expense is going to be debited. So depreciation account debited to fixed asset. Fixed asset का बैलेंस किस साइड होता है? फिक्स्ड एसेट का बैलेंस होता है डेबिट साइड पर. मगर जो भी चीज जब एसेट साइड को डिक्रीज करेगी, सो ऑन विच साइड इज इट गोइंग टू कम, और ऑन विच साइड इज इट गोइंग टू बी शोन? इट इज गोइंग टू बी शोन ऑन द क्रेडिट साइड. जब एसेट का बैलेंस आपके डेप्रिसिएशन की वजह से कम हो रहा है, दिस इज हाउ वी शो इट इन बैलेंस शीट. व्हेन वी शो असेट, सो असेट्स, ये हमारा फिक्स्ड एसेट है, फिक्स्ड एसेट माइनस डेप्रिसिएशन, दिस इज हाउ वी शो, राइट? ये अमाउंट जाता है हमारे एक्सटर्नल कॉलम के अंदर, ये वाला, राइट? तो असेट माइनस डेप्रिसिएशन किया जा रहा है, यानी कि असेट का बैलेंस डेप्रिसिएशन की वजह से रिड्यूस हो रहा है. तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस था इसलिए डेबिट किया, और एसेट का बैलेंस रिड्यूस हो रहा था इसलिए उसे क्रेडिट किया. तो अब अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन के अंदर हम इसे कैसे ट्रीट करेंगे? मतलब अगर आपको क्वेश्चन में लिखा आता है depreciate furniture by rupees 1000, how are you going to treat it? ट्रीटमेंट देखते हैं इसका. So let's take machinery as an asset, right? अब मशीनरी पे आपको एसेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, राइट? तो मशीनरी की मान लेते हैं वैल्यू है 1,00,000 रुपए. Okay, I hope you all are following it. Anybody who is not understanding at any point of time, stop me there and then. मुझे पूरा रिवाइज रिपीट करने के लिए कहेंगे तो वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा. Okay, so please focus. Okay, so depreciation आप सबको समझ में आ गया. I am charging the depreciation on one of the asset which is machine. 1 लाख की वैल्यू की मशीन अवेलेबल है. क्वेश्चन में लिखा आता है depreciate machine at the rate of 10%, right? तो 10% आपका लिख के आया पर एनम. तो 10, ये 1 लाख का 10% कितना होता है? इट इज 10,000, राइट? तो ये 10,000 जो है वो आप माइनस करेंगे यहां से. सो व्हाट इज द न्यू बैलेंस व्हिच इज रिमेनिंग? इट इज 90,000. और क्योंकि ये एक एक्सपेंस था जिसको हमने इनकर किया है, मगर हम इसे कैश में पे नहीं करते, मैं फिर से बता रही हूँ ये एक नॉन कैश ट्रांजैक्शन होती है, इसलिए कैश पे कोई इफेक्ट नहीं होगा. एक हमारा ट्रीटमेंट है कि हम इसे असेट में से माइनस करेंगे, और दूसरा कैपिटल का बैलेंस है यहाँ से, यहाँ पे हम माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, जो भी मान लेते हैं 2 लाख कैपिटल का बैलेंस था,
ये एग्जाम्पल से ले लिया हमने, और ये 10,000 यहाँ से माइनस किया, so it is 1,90,000. Okay, I hope you are able to understand this technique and this treatment of depreciation, right? So depreciation क्या है? Depreciation is a non-cash transaction. We have to reduce it from the fixed asset because depreciation is charged over the fixed asset. तो आपने reduce किया अपने fixed asset को उसी amount से जो आपने depreciation charge किया हुआ है. अगर depreciation amount में लिखा हुआ है आता है, बहुत बढ़िया है, कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली वो अमाउंट माइनस कर दीजिए यहाँ से और कैपिटल से. अगर अमाउंट नहीं लिखा आता है, परसेंटेज लिखी आ रही है, तो जो भी आपके एसेट की वैल्यू अवेलेबल होगी उस पे आप लगाएंगे वो परसेंटेज, राइट? तो वो परसेंटेज आप लगाइए, जैसे मैंने यहाँ लगाया 1 लाख की मेरे पास मशीन थी, उस पे 10% चार्ज करना था, तो 1 लाख का 10% इज 10,000, तो हम चार्जिंग इट, द रिमेनिंग बैलेंस इज 90,000, कैरी फॉरवर्ड करके लेते चलिए उससे. Okay, I hope this is clear to all. Nobody is having any doubt over this. Is it clear, class? 11B. Okay, I hope you all are awake. You're not sleeping. Okay, okay. So I'm receiving some yes. So I'm able to understand that. Okay, this is clear now. Okay, so I'm going to rub this off now, and let's move on to the next set of transaction. Okay. देखिए हम लोग ऑनलाइन मीडियम में पढ़ रहे हैं, मुझे आपका यस बहुत जरूरी होता है रिसीव करना, या नो या डाउट या जो भी. अगर आप मुझे रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा, राइट? सो इसीलिए थोड़े से थोड़े से अवेक रहा कीजिए. ओके, नियति बच्चे आप पूछ रहे हैं बट देन द टू साइड्स आर नॉट इक्वल. बच्चे बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा आपने नियति. दो साइड इक्वल नहीं हो सकते थे यहाँ पे. क्यों? क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैंने असेट की साइड में सिर्फ एक मशीन को लिया था, राइट? और दूसरा जो साइड मैंने लिया कैपिटल का, वो मैंने लिया 2 लाख रुपीज. मतलब ये 2 लाख और 1 लाख ये सब आपके हाइपोथेटिकल फिगर्स थे. मतलब ये मैंने फिगर्स लिए आपको समझाने के लिए, राइट? अगर मैं इस पे एक साइड मशीन लेती और दूसरा साइड सिर्फ कैपिटल लेती, तो कैपिटल का कुछ पुराना बैलेंस भी तो अपीयर कर रहा होगा ना. मतलब कैपिटल आप पहले लेकर आए होंगे, उसका कुछ बैलेंस होगा, उसकी वजह से वो 2 लाख दिख रहा था, और मशीन आपकी दिख रही थी 1 लाख. मतलब मशीन if it is getting depreciated, it will, if it is the first asset, it will not only be the only asset, right? आप जब कैपिटल इंट्रोड्यूस करोगे तो क्या सिर्फ मशीन लेकर आओगे, कुछ और लेकर नहीं आएंगे? यू आर नॉट गोइंग टू ब्रिंग बिल्डिंग और कैश और एनीथिंग एल्स. ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू ब्रिंग इट, राइट? इसीलिए उन सबका टोटल आपका कैपिटल बनाता है, एंड दैट इज व्हाई आई पर्पसफुली ऑप्टेड फॉर अ कैपिटल विद अ हायर अमाउंट and machine with a little lower amount, just as to show you the treatment of depreciation, how it will be shown in the asset and how is it going to be shown in the capital. तो यहाँ पे बैलेंसिंग होनी पॉसिबल थी ही नहीं, क्योंकि हम बैलेंसिंग नहीं कर रहे. बैलेंसिंग आप करते हैं जब आप सारे ट्रांजैक्शंस को सॉल्व करते हैं ना. जैसे आपने देखा जब हम अकाउंटिंग इक्वेशन बना रहे थे, तब हमने हर इक्वेशन को बैलेंस किया, क्योंकि वो बैलेंस होता है, राइट? यहाँ तो मैं आपको सिर्फ ट्रांजैक्शन वाइज बता रही हूँ, हाइपोथेटिकल एग्जांपल, हाइपोथेटिकल फिगर्स लेके, अज्यूम करके फिगर्स, राइट? These figures are not given, right? And that is why this is the transaction which I am telling you, or I'm telling you the treatment in particular for every transaction जो मैं डिस्कस कर रही हूँ यहाँ पे आपके साथ. जैसे जब मैं आपको क्वेश्चन दूंगी और ये ट्रांजैक्शन आएगा जब आपको, तो आप बहुत आराम से उसे सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है. ओके, I hope Niyati Bachche this is answering your doubt. This has answered your doubt. Okay. Anybody else? I hope no other person has any doubt. Okay. Ma'am, so while calculating the asset after charging depreciation, we divide the total cost into the time intervals, or we take the entire amount. Okay. You divide the total cost into the time interval, but that time interval will be dependent upon the life, right? जैसे अगर मैं कहूँ ये मशीन की लाइफ थी 10 साल, राइट? और हर साल 10-10 हजार आप माइनस करते जा रहे हैं, तो बाय द एंड ऑफ द ईयर द वैल्यू ऑफ द मशीन इज गोइंग टू बी 0, राइट? तो जब वो 0 हो जाएगी उसकी वैल्यू, तो वो जो हो जाएगा स्क्रैप. तो आप उसको स्क्रैप में बेच के जो वैल्यू रिकवर करेंगे, दैट इज कॉल्ड द स्क्रैप वैल्यू और सैल्वेज वैल्यू और रेसिडुअल वैल्यू, राइट? दैट मींस द टोटल कॉस्ट, बहुत बढ़िया कहा आपने, द टोटल कॉस्ट इज गोइंग टू बी डिवाइडेड बेस्ड ऑन द टाइम इंटरवल, and the time interval is basically the life of that asset. Okay, I hope Niyati that is clarifying your doubt completely, and I hope that your entire question has been understood and answered well. Okay, so let's move further and let's do the next transaction. और ये next transaction में जो आपको करवाने वाली हूँ वो है हमारे bad debts. Okay,
बैड डेट्स याद है आप सबको अभी भी? बैड डेट्स क्या होते थे? बैड डेट्स, जिसको मैंने ऐसा भी कहा था कि दीज आर द बैड डेटर्स, राइट? मतलब वो डेटर्स जो हमको पेमेंट नहीं करते हैं, मतलब जिनको ओके अनुश्री आपने पूछा व्हाट एग्जैक्टली इज द रेसिडुअल वैल्यू। रेसिडुअल वैल्यू का मतलब मैंने अभी बताया कि इट इज अ स्क्रैप वैल्यू व्हिच यू रिसीव आफ्टर द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ द एसेट। जैसे अगर मैं कहूँ कि इस मशीन की लाइफ थी, जो भी हमने एग्जांपल में लिया 10 साल, 10 साल के बाद वो क्या हो जाएगी? कबाड़, राइट? सिंपल हिंदी में बोले तो कबाड़ हो जाएगी। अब कबाड़ से आपको क्या मिलेगा? जो मिलेगा वही कहलाता है उसका रेसिडुअल वैल्यू, राइट? आई होप अनुश्री बच्चे आपको अभी बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया है कि रेसिडुअल वैल्यू क्या होती है या सैल्वेज वैल्यू क्या होती है। ओके, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन के ऊपर, बैड डेट्स। टाइम ऑफ द मीटिंग इज गोइंग टू बी अप नाउ। आई वांट यू ऑल टू रिकनेक्ट। आई एम साइनिंग आउट राइट नाउ। Everybody, please reconnect. Okay, give yourself a time of 1 minute. Take a break for 1 or 2 minutes. Reconnect yourself because we are going to start with the next set of transactions. Okay, thank you everyone.